giving me the opportunity to introduce the subject as well as to introduce our learned speaker today. Today's topic is how to prepare project report for bank finance and key points for the balance sheet. As I was just discussing with our dear brother Rajiv Kohli, nowadays, we had to had the project report in the case of the startup at the various stages. Besides that, the project report is required under various circumstances. Maybe a new venture or maybe an existing venture for the diversification, for the modernization, for the upgradation, or the various other reasons. So with this background in the mind, our learned speaker will give us the insight into the subject, that how to prepare the project report, as well as the key points related with the balance sheet also, because the balance sheet is also very important part of the project report in the case of an existing entity. So with this, I will introduce our speaker, C.A. Rajesh Agarwal. C.A. Rajesh Agarwal is a chartered accountant, DISA qualified from the Institute of Chartered Accountant of India, certified business valuer from the Institute of Chartered Accountant of India, entrepreneur with professional outlook. In his professional span of 18 years, he has accumulated rich experience in almost all the fields of financial sector, with proven expertise in debt syndication and restructuring, financial modeling, and investment banking. He is the founder chairman of Finanza Capital Services Private Limited, managing debt requirements of various corporates. He is the managing partner of renowned chartered accountant firm Messrs. KPMG and Associates, engaged in handling several professional assignments and central statutory audit of public sector undertakings and public sector banks. He is the ex-convener of East Delhi CACPE Study Circle, National Organizing Secretary of Bharatiya Charitra Nirman Sansthan. He is working with the human rights protection and crime eradication through Bhagavad Gita. Some of the forum on which he has already deliberated, they are the Indian Chamber of Commerce and Industry, Tuticorin, Tafta Chamber of Business and Industry, East Delhi CACP Study Circle of NIRC of ICI, Global CA, that is Knowledge Tree, and Team CASA. So these are his achievements. He's an expert in the field. Without taking much time, I will request our learned speaker to take up the subject. To our dear CA Rajesh Agarwal, the speaker of the day. Thanks, Rajesh Jain ji, for nice introduction. At the outset, I am grateful to my elder brother CA Rajesh Agarwal ji, Rajiv Kohli ji, A.K. Srivastav ji, and the Pusa Road Study Circle for giving me the opportunity to discuss on the subject. मेरे बड़े भाई राजेश अग्रवाल जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका स्नेह और गाइडेंस ऐसे ही मिलता रहेगा। समय समय पे आपका गाइडेंस मिलता रहता है और आप भी कृष्ण प्रेमी हैं। I welcome all the colleagues and seniors. Friends, today I want to share my experience on bank finance, specifically preparation of project report. राजेश जी, प्रेजेंटेशन आप शेयर करेंगे या मुझे शेयर करनी है इधर से? सर आप ही शुरू कीजिए। मैं शेयर करूं, जस्ट एक सेकंड होल्ड कीजिए।
विजिबल है सर? Yes, yes. Very clear. So, friends, there are various type of bank finances which are available to us. And for understanding, I have divided into two parts. First is for non-business purpose. Non-business purpose loans are like personal loans, education loans, housing loans, car loans, jewelry loan, loan against property, etc. So, आज हम जो डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए वो करेंगे हम फॉर बिजनेस पर्पज। बिजनेस पर्पज के लिए जो हम लोन लेते हैं उसमें जनरली टू टाइप्स रहते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, and term loans. Term loans are required for purchase of land and building, plant, machine, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। construction, etc. अजय जी और So, ऑडियो इज क्रैकिंग जब सर। भी क्लाइंट बैंक को अप्रोच करते हैं, just हाँ, एक मिनट रुकिए। जी सर, अब ठीक है? हाँ, बेटर। थोड़ा नियर आ गया हूँ। अब वॉइस सही है सर? यस सर। ओके। लाउड एंड क्लियर सर। सो बिजनेस पर्पज के लिए जनरली जब भी बैंक फाइनेंस के लिए हम अप्रोच करते हैं, सो एक डिटेल्ड एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंकर्स हमसे डिमांड करते हैं। और आपकी फाइनली एंड मेजरली डिपेंड करती है ऑन द वायबिलिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्वालिटी से बैंकर्स के माइंड पे ग्रेट इंपैक्ट आता है, वेदर दे शुड फाइनेंस इट और नॉट। सो आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हम कैसी एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। एंड आई एश्योर यू कि अगर आपने इसको ध्यान से सुना और समझा और इंटरेक्टिव रखा, तो इस वेबिनार के बाद अगर किसी भी क्लाइंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास आती है तो आप उसको बहुत इफेक्टिवली तैयार कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सेमिनार को इंटरेक्टिव रखें। जहां भी कोई डाउट आए मन में, सो यू कैन आस्क विद द परमिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स। सो slide. Now we'll understand what is project report. मैं बड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी प्रपोज बिजनेस की ओवरऑल पिक्चर बैंकर्स को डिपिक्ट करता है। And it is the most important part of your project, and it should be properly structured. उसका स्ट्रक्चर बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिपिक्ट करनी चाहिए। एंड इस तरीके से इसको रेडी करना है कि जो इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड हो। कोई भी बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स को हमें उसमें नहीं लेके चलना है। बैंकर्स जैसे ही उसको रीड करे तो उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एक 200 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए वही अच्छी है। एक 50 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बेटर है, जिसमें आपकी सारी वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में डिपिक्ट की गई है। नाउ प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन रेडी करना चाहिए, जिसमें कि जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है हम वो गैदर करें।
और ये क्वेश्चनर आपके प्रोजेक्ट के कंटेंट्स के ऊपर डिजाइन होना चाहिए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट कंटेंट्स हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चनर के लिए रहते हैं, जैसे कि आपने क्लाइंट से कुछ क्वेरीज की, वेबसाइट्स हैं, क्लाइंट की वेबसाइट है, इंडस्ट्री की कुछ वेबसाइट्स हैं, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल्स हैं। सो इन सभी स्टेप्स के बाद हम चलते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरफ। Generally, there are 4 broad areas which are to be covered in project report. First area is content of project report or executive summary. फिर हम बात करेंगे about organization and promoters, then project का analysis और financial analysis. इन सभी चारों एरियाज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। This is the first section of your project report, which contains page, table of contents, and executive summary. Cover page. Friends, cover page is the first impression, and it should be best. A properly designed cover page should have आपके प्रोजेक्ट का नेम, टाइटल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द फर्म preparing the project report. It will add a value to the project report. जो प्रिपेयर है वो भी अपनी फर्म का नेम उस पर राइट करे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रमोटर्स की, एंड आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने किस डेट में बनाई है। समटाइम्स इट हैपेंस कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनाई है जनवरी के मंथ में और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रैल में भी फ्लो हो रही है। सो व्यूअर में रीड एंड अंडरस्टैंड कि ये डाटा 3 months बैक का है। सो डेट हैव ए मच इम्पैक्ट ऑन योर कवर पेज। Table of contents. Content list is the one place where overall structure can be examined. Basically, it's an index, and it should be depicted in sections and subsections. And page number shall be written on the right side of the each of the heading or subheading. Our page number एक बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद ही आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो भी इसका रीडर है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा आपके कंटेंट्स को देख के कि किस पेज पे क्या इंफॉर्मेशन आपने दी है। Executive summary. This should be concisely written and should present the proposed project nearly. ब्रीफ में आपकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ये एग्जीक्यूटिव समरी डिपिक्ट करेगी, जिसमें छोटा छोटा ब्रीफ आप जितना भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा है वो इस 2 पेज 3 पेज की एग्जीक्यूटिव समरी में डालेंगे, ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है वो इन 2 पेज को रीड करके ही पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंडरस्टैंड कर सके और फिर उसको जो भी डिटेल में समझना है वो फिर आपके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अंदर जाकर देखे। क्योंकि आज के टाइम में टॉप मैनेजमेंट के पास, जीएम के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी 100 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक बार में रीड कर ले। वो एग्जीक्यूटिव समरी को देखते हैं और उसी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर डिसाइड कर लेते हैं whether we should go ahead or not. So it's brief information like address, date of incorporation, contact details, key managerial persons, directors की पैन number, age,
net worth, etc. Then we come to key financial parameters like turnover, net worth क्या है कंपनी की, net profits क्या हैं, cash profits क्या हैं. Then we go by existing financial arrangements. आपकी किस बैंक से भी कौन आपके प्रेजेंट बैंकर है, वहां से क्या आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज चल रही हैं. प्रपोज प्रोजेक्ट डिटेल्स, जैसे आपके प्रोजेक्ट की क्या लोकेशन है, क्या उसकी प्रपोज कैपेसिटी है, क्या आपके ब्रीफ मार्केटिंग अरेंजमेंट्स हैं, फैक्ट्री के लेआउट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी क्या लगानी है, क्या कॉस्टिंग है उसकी, पावर एंड सप्लाई क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का शेड्यूल क्या है, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन ब्रीफ, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग की, मशीनरी की, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, और फाइनेंशियल एस्टिमेट्स लाइक आपके मींस ऑफ फाइनेंस क्या है, प्रपोज फैसिलिटी, आपका प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, क्या आप सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं. ये सब बहुत ही ब्रीफ में आपको देना है ताकि 2 पेज 3 पेज के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एग्जीक्यूटिव समरी में आ जाए. हालांकि ये एग्जीक्यूटिव समरी भी आपकी तब प्रिपेयर होगी जब आपकी आगे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाएगी, लेकिन प्लीज आपको इसमें को सबसे पहले करना है. फ्रेंड्स, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. बेसिकली यहीं से हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट होती है. यहाँ हम इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रमोटर्स के बारे में. सबसे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री देते हैं ऑर्गेनाइजेशन की. ऑर्गेनाइजेशन कब से एग्जिस्टेंस में थी और उसकी हिस्ट्री कैसे रही, उसके क्या माइलस्टोन रहे, उसको कंसाइज मैनर में बताते हैं. कब आपने फैक्ट्री स्टार्ट की, कब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कब आपने उसमें नया प्रोडक्शन स्टार्ट किया, कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया. सो उसके बारे में चार्टिंग देते हैं. क्वालिटी पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपकी, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिसके साथ आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और रन कर रहे हैं. आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं तो उसके हाइलाइट्स क्या हैं, आपने कोई रजिस्ट्रेशंस कराए हुए हैं, कोई लाइसेंसेस लिए हुए हैं विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसके बारे में आप बताएंगे. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जब तक आप अपनी हिस्ट्री को, अपने माइलस्टोन्स को नहीं बताते हैं तब तक बैंकर्स आपसे इंट्रोड्यूस ही नहीं होते हैं. एंड मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो मार्केट में मिलती हैं, जो लोग बनाते हैं, वो सिंपल प्रोजेक्ट के बारे में तो बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रमोटर्स के बारे में बात नहीं करते हैं. ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर, जबकि हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टार्ट ही ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रमोटर्स से होनी चाहिए. नेक्स्ट इज आपके क्या की फाइनेंशियल डाटाज हैं, पिछले 3 इयर्स की नॉर्मली हम लोग पिकअप करते हैं. उसमें आपकी क्या सेल्स हैं, क्या ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट्स हैं, नेटवर्थ है, आपका क्या कैपिटल मिक्स है ऑर्गेनाइजेशन का. पास्ट फाइनेंशियल फिगर्स की बहुत ही अहमियत है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, उसको हम जरूर बताएं. एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज क्या हैं, जैसे आपने कोई फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड कोई फैसिलिटी एग्जिस्टिंग बैंकर्स से ली हुई है, उसका प्रॉपर चार्ट दें. उसमें आपने क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, वो सारी टर्म्स को प्रॉपरली बताएं. प्रमोटर्स की डिटेल के बारे में दें. द नेम ऑफ द प्रमोटर्स, उनकी ब्रीफ प्रोफाइल क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, एज क्या है, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, नेटवर्थ क्या है प्रमोटर्स की. सो एवरी प्रमोटर के बारे में डिटेल में बताएं. अगर फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं तो फोटोग्राफ्स भी उसमें पेस्ट करें. नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न.
शेयर होल्डिंग पैटर्न जब भी आप दें तो उसको सपोज 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं और उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, सो उसको ग्रुप वाइज फैमिली वाइज आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिपिक्ट करें, ताकि बैंकर को ये अंडरस्टैंड हो कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, कंट्रोलिंग पर्सन हैं, और ये उन्हीं की फैमिली के पास शेयर्स हैं। अगर एक कंपनी में 10 या 12 शेयर होल्डर दिखाई देते हैं तो बैंकर्स विल नॉट अंडरस्टैंड कि मैनेजिंग पर्सन कौन है और वो किससे टॉक करेंगे। सो हमें इसको ग्रुप वाइज फैमिली वाइज डिवाइड करके देना चाहिए, उनकी परसेंटेज भी आप निकाल के दें उसको। देन पॉइंट इज एसोसिएट और ग्रुप कंपनीज। ग्रुप कंपनीज या जो भी आपके एसोसिएट कंसर्न है उसके बारे में भी जितना हमने ऊपर सारा डिस्कस किया है वो सारा थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में सारी एसोसिएट या ग्रुप कंपनीज के बारे में बताएं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है जनरली प्रमोटर्स का कि व्हाई हम एसोसिएट और ग्रुप कंसर्न्स के बारे में क्यों बताएं, वो जनरली डिसेंटिएंट रहते हैं इस पार्ट पे। बट फ्रेंड्स, फाइनेंसिंग इज लाइक ए पार्टनरशिप इन द फर्म। अगर हम बैंकर्स को सारी पोजीशन नहीं बताएंगे पूरे ग्रुप के बारे में, अपने प्रोफाइल के बारे में, अपने इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में, तो बैंकर्स विल नॉट कम टू नो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और इन केस ऑफ डाउनटर्न आप किस तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। सो ये हमें जरूर देनी चाहिए एसोसिएट और ग्रुप कंसर्न्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या हम इसको ऑर्गेनोग्राम भी कह सकते हैं। इट डिस्प्लेज द इंटरनल स्ट्रक्चर और हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट शोज क्लियर पिक्चर ऑफ द चेन ऑफ कमांड। कैसे कैसे टॉप टू बॉटम फ्लो हो रही है, कौन पूरे ऑपरेशंस को कमांड कर रहा है, प्रोडक्शन को कौन देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखते हैं, मार्केटिंग को कौन देखते हैं, फ्लो ऑफ अथॉरिटी क्या है और कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है टॉप टू बॉटम। एंड इट क्रिएट्स ए रोड मैप फॉर हाउ द वर्क इज टू बी डन। सो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्लियरली डिजाइन होना चाहिए, जिससे कि पता चले कि प्रमोटर्स कौन है, हर एक डिपार्टमेंट के हेड्स कौन हैं। और पहले जब हम बात कर रहे थे प्रमोटर प्रोफाइल की, प्रमोटर प्रोफाइल में जो आपके की मैनेजरियल पर्सन हैं, जो हेड्स हैं डिपार्टमेंट्स के, उनका भी प्रोफाइल आप उसमें ऐड करें। So, friends, now we will discuss the third section of the project report. We have discussed 2 sections. First, contents and executive summary. Second, organization, group and promoters. And in this part, we will discuss all about proposed project. अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं सर, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्रीफ डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। लैंड एंड बिल्डिंग, जनरली किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर यही कंटेंट्स चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है या एक्वायर्ड की हुई है, उसके बारे में हम बताएंगे। उसका क्या एड्रेस है, क्या साइज ऑफ द प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है या टू बी कंस्ट्रक्टेड है। अगर टू बी कंस्ट्रक्टेड है तो उसके लेआउट प्लान्स आपके पास हो गए हैं या पास होने हैं, उसका क्या स्टेटस है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट से कंस्ट्रक्शन के लिए आपको एनओसीज की रिक्वायरमेंट होती है,
उन एनओसीज के क्या स्टेटस हैं, एनओसी वाइज हम बताएंगे कि फायर की एनओसी आ गई है नहीं आ गई है, पोल्यूशन की एनओसी आ गई है नहीं आ गई है, एयर की एनओसी आई है या नहीं आई है, उन सारी एनओसी के स्टेटस के बारे में चार्टिंग देंगे यहाँ पर। देन वी कम टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में एग्जिस्टिंग या प्रपोज लिस्ट ऑफ मशीनरी देंगे, एग्जिस्टिंग में आपके पास क्या क्या मशीनरीज है अगर है तो, और प्रपोज लिस्ट में आपने क्या क्या प्लांट एंड मशीनरी ऐड करनी है, उनके नेम, उनके मॉडल नंबर, कितनी क्वांटिटी में परचेज होनी है, किस सोर्स से आप परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट करनी है या इंडिजीनियस लेंगे, और कितने अमाउंट की प्लांट एंड मशीनरी यू हैव टू एक्वायर। इफ यू हैव गोट द कोटेशंस, सो कोटेशंस के बारे में बताएंगे किस किस कंपनी से आपने क्या क्या कोटेशंस लिए हैं, उनको साथ में अटैच भी करेंगे कोटेशंस को। एंड इफ पॉसिबल कोटेशंस 2-3 सप्लायर्स से लेनी चाहिए तो हैव ए कंपैरिजन। उनका डिलीवरी और इंस्टॉलेशन टाइम क्या है आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर, उसके बारे में बताएंगे। देन इज अदर मिसलेनियस असेट्स such as office equipments, genset, furniture fixtures, vehicles, and अगर इनके लिए भी आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मिसलेनियस एसेट्स के लिए भी, सो जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी में सारी डिटेल दी है, इन इक्विपमेंट्स के बारे में भी वो सारी डिटेल्स एंड कोटेशंस सब हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन इज मैन पावर रिक्वायरमेंट्स such as how much is skilled or semi-skilled or unskilled staff is required, how much is managerial level or supervisory level or labor class is required, who will be the key managerial persons, और उनकी क्या अवेलेबिलिटी है, क्या कॉस्टिंग्स हैं मैन पावर की, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। देन रॉ मटेरियल, किस टाइप का आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, और वेदर जिस लोकेशन पे आप अपना प्लांट लगा रहे हैं वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल आपका पेरिशेबल है नेचर में तो वो बताएंगे कि पेरिशेबल है नेचर में, उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या है रॉ मटेरियल की, और क्या डिलीवरी टाइम है आपका ऑर्डर प्लेस करने के बाद, कितने टाइम में आपको रॉ मटेरियल रिसीव हो जाता है। देन इज पावर एंड फ्यूल, आपको किस टाइप का पावर फ्यूल रिक्वायर्ड है, वेदर डीजल से चलेगा, सोलर से चलेगा, जो भी आपकी पावर एंड फ्यूल की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताएंगे। मंथली उसकी कितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड होगी, क्या उसका प्राइसिंग है, क्या आपके पावर लोड की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इस सब के बारे में आप डिटेल से बताएंगे। प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रोसेस फ्लो चार्ट डिटेल्स द ग्रैन्युलर activity level. It depicts the whole process in steps which should be completed to create finished goods. रॉ मटेरियल हम रिसीव करते हैं, रॉ मटेरियल के बाद वो रॉ मटेरियल हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आता है और फिनिश प्रोडक्ट्स में टर्न होता है। तो हमें इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा ये बताना होता है कि डिफरेंट स्टेजेस पे किस किस तरीके से हमारा रॉ मटेरियल फ्लो होते हुए फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म होगा, सो दैट कि आपके प्रोसेस की फुल अंडरस्टैंडिंग लेंडर को मिल पाए। वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये हम इसको ऑपरेटिंग साइकिल भी कह दे रहे हैं। इट मेजर्स हाउ क्विकली ए बिजनेस कैन टर्न इनटू कैश।
आपके जो भी करंट असेट्स हैं उसको किस तरीके से आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड उसमें लगता है, एंड stages of working capital cycle depend on your business, industry and how you operate. किस तरह की इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको ऑपरेट करते हैं, बट की एलिमेंट्स ऑपरेटिंग साइकिल के सेम ही रहते हैं सब में, टाइमिंग्स में डिफर। जनरली आपकी जो इन्वेंट्री है उसको कितना टाइम लगता है और कितना टाइम आप उसकी पेमेंट को रिसीव करने में लगाते हैं, इट होल अबाउट द ऑपरेटिंग साइकिल। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक रिटेल कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल इन्वॉल्व कर सकता है परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, selling the product over several weeks and collecting cash from credit. It may take a month or so. Suppose आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल में 60 डेज का आपका इन्वेंट्री टर्नओवर है और 60 डेज का आपका डेटा टर्नओवर है, सो इट कम्स टू टोटल 120 डेज। और आपकी जो क्रेडिटर्स हैं वो आपको 30 डेज का क्रेडिट अलाउ करते हैं, सो द वर्किंग कैपिटल साइकिल कम्स टू 90 डेज। 60 + 60 - 30, 90 डेज। जितना शॉर्ट आपका ऑपरेटिंग साइकिल होगा उतनी ही फास्ट आपकी वर्किंग कैपिटल रोटेट करेगी। So the shortest is the operating cycle, your working capital requirements are less, which bankers prefer. फिर कुछ डिटेल्स हम और प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आपकी प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड सप्लायर्स के बारे में बताएंगे, आपके एग्जिस्टिंग जो मेन टॉप 10 या टॉप 5 जो बायर्स हैं या सप्लायर्स हैं उसके बारे में बताएंगे, उनके नेम, एड्रेस, लोकेशंस, या एग्जिस्टिंग नहीं है तो प्रोस्पेक्टिव आप जिनको भी टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, सो दैट बैंकर्स को ये अंडरस्टैंड हो कि आपने उस पर प्रॉपर होमवर्क किया हुआ है, प्रॉपर रिसर्च है एंड यू आर सीरियस अबाउट योर प्रोजेक्ट। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि आपकी क्या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, क्या आपकी टारगेटेड टर्नओवर है, आपका टारगेटेड सेगमेंट क्या है, आप अपने बिजनेस को मार्केट में कैसे एस्टेब्लिश करेंगे और कैसे आप उन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करेंगे बायर्स एंड सप्लायर्स के साथ में। देन the most important part is SWOT analysis. SWOT analysis सबसे important part है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। इसमें हम अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में बताएंगे। वीकनेसेस ऑफ द प्रोजेक्ट, लाइक आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, न्यू कंपनी है, एक्सेट्रा, एंड एज फार एज पॉसिबल जितनी भी आपकी वीकनेसेस हैं आप इसमें 1 by 1 सभी वीकनेसेस को बताएं, ताकि बैंकर्स को ये पता चले कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, वो अपने मन से ना सोचें। अगर आपने यहाँ पर सारी वीकनेसेस उसको बता दी तो यहाँ आपके पास चांसेस है कि आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ्स भी बता सकेंगे। सो सारी वीकनेसेस को आप यहाँ पर टेबल करें और वीकनेसेस को बताकर फिर आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएं। 1 by 1 एक एक वीकनेस को एड्रेस करते हुए आप उस वीकनेस को कैसे ओवरकम करेंगे अपनी स्ट्रेंथ से, सो ये आप केयरफुली बताएं। अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या अवेलेबल हैं,
और उन अपॉर्चुनिटीज के अलावा थ्रेट्स क्या क्या हो सकती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, कस्टमर प्रेफरेंसेस में चेंजेस हो सकते हैं, उस सब के बारे में आप डिटेल्ड में स्वोट एनालिसिस दें, ताकि बैंकर्स को कुछ भी इधर उधर से ना पता करना पड़े, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उसको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल पाए। Financial analysis. Friends, this is the last part, last but most crucial part of the project report, जहां एक चार्टर अकाउंटेंट की सबसे ज्यादा नीड होती है, एंड स्पेशली यही हमारा एरिया है जहां हमें सारी फाइनेंशियल फिगर्स को डिपिक्ट करना होता है, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के बारे में बताना होता है, प्रोजेक्शंस को बनाना होता है। सो सबसे मेन एरिया हमारा यही है। इस एरिया में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में बताना होता है। कैपिटल कॉस्ट एंड वर्किंग कैपिटल दो मेन पार्ट हैं कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के। एंड कैपिटल कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट सच एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बेसिकली जो भी हमने ऊपर प्रोजेक्ट एनालिसिस में डिस्कस किया है जिन जिन इंग्रेडिएंट के बारे में, उन सब इंग्रेडिएंट्स का पार्ट हम यहाँ बताएंगे कि हम कोई लैंड खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी होगी, उसके अप्रूवल की कोई कॉस्ट है तो वो अप्रूवल की कॉस्ट कितनी होगी, प्लांट एंड मशीनरी हमें परचेज करनी है तो प्लांट एंड मशीनरी की क्या कॉस्टिंग है, अदर मिसलेनियस असेट्स हमें एक्वायर करने हैं तो उनकी क्या कॉस्ट है, प्री ऑपरेटिव कोई कॉस्ट है जैसे कि इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड है, कंसल्टेंट के एक्सपेंसेस हैं, या बैंक की प्रोसेसिंग फीस है। इन सभी एक्सपेंसेस को भी हमें कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में नहीं डालेंगे, जो जनरली देखा जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अंदर, सो ये हमें फ्यूचर में हार्डशिप क्रिएट करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट ओवररन हो जाएगी। आपने कोई फंडिंग ली बैंकर से और बैंक की प्रोसेसिंग फीस आपने उसमें नहीं डाली या कंसल्टेंट की फीस नहीं डाली, सो फ्रॉम वेयर यू विल फंड दैट। सो कैपिटल कॉस्ट को बड़ा ही हमने केयरफुली डिजाइन करके डालना है। देन इज वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में हमने पढ़ा। सो ऑपरेटिंग साइकिल को बेस लेते हुए आप अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डालें कि कितना आपको पीछे से क्रेडिट मिल रहा है, कितना आपको क्रेडिट देना है, और कितना टाइम आपके स्टॉक को कैश में कन्वर्ट होने में लगेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हम ऑपरेटिंग साइकिल लें, कंसीडर करें, वो इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ नॉर्म्स रहते हैं, एक प्रैक्टिस रहती है बैंकर के पास, आपकी इंडस्ट्री के मे बी 10 क्लाइंट और हों, सो ही विल कंपेयर फ्रॉम देम कि आप भी स्टील इंडस्ट्री में हैं, दूसरा क्लाइंट भी स्टील इंडस्ट्री में है, उसका 100 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल है, आप कह रहे हैं 200 डेज का है। सो इट शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड। Next is means of finance. Generally, bankers और financial institutions मार्जिन मेंटेन करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से पहले दे आस्क कि प्रमोटर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, हाउ मच स्किन द प्रमोटर इज,
generally 25% of the project cost, total cost of the project, bankers demand as a promoter margin. However, it may go up to 40% or 30% as per the comfortability of the banker. But normally 25% दे सी कि प्रमोटर ने अपना कंट्रीब्यूशन उसमें लगाया हो, 25% की प्रमोटर की कैपिटल हो, ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें रहे। ऐसा ना हो कि टोटल पैसा ही बैंकर में लगा दिया और आप अपना इंटरेस्ट उसमें लूज कर गए। सेकेंडली, ये जो मार्जिन परसेंटेज है डिपेंड करती है बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस पे भी। अगर कोई बहुत ही क्रेडिट वर्दी इंस्टीट्यूशन है तो इट मे गो डाउन फ्रॉम 25% ऑल्सो। थर्डली, आप उसमें सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। कई बार आपने कोलेटरल बहुत अच्छी दे दी तो भी प्रमोटर मार्जिन डाउन ले सकते हैं। one way or other way your skin is in the project. बाकी आप मीन्स ऑफ फाइनेंस में बताएंगे कि आपने 25% सपोज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से लगाया, some amount you are demanding from bank term loan, some you demanding in the form of working capital limit, या अदर लॉन्ग टर्म लोन्स आपको किसी और सोर्सेज से भी मिल रहे हैं तो उसके बारे में बताएंगे कि किसी और सोर्सेज से भी हमें कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स मिल रहे हैं, और कुछ फंड्स आपको इंटरनल एक्रूवल से मिल जाने हैं। आपने कोई पार्ट में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, सो इंटरनल एक्रूवल्स भी आपको स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या आपको फाइनेंशियल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं। टाइप ऑफ फैसिलिटी के बारे में बताएंगे, लाइक आपको ओडी की रिक्वायरमेंट है या सीसी लिमिट की रिक्वायरमेंट है या पैकिंग क्रेडिट लिमिट की रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट कंसर्न्स। पैकिंग क्रेडिट लिमिट की रिक्वायरमेंट है तो वो INR में है या फॉरेन करेंसी में है। टर्म लोन की कितनी रिक्वायरमेंट आपको है कंस्ट्रक्शन के लिए, मशीनरी परचेज के लिए। बैंक गारंटी की क्या रिक्वायरमेंट है, या आप एक्सपोर्ट कंसर्न है तो लेटर ऑफ क्रेडिट की क्या, LC की क्या रिक्वायरमेंट है। पर्टिकुलरली ईच टाइप ऑफ फैसिलिटी के बारे में आप बताएंगे कि इस फैसिलिटी में हमें कितने कितने क्वांटम की रिक्वायरमेंट है। सिक्योरिटी आप क्या ऑफर कर रहे हैं हर एक फैसिलिटी के लिए। प्राइमरी में क्या सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं, कोलेटरल में क्या कर रहे हैं। प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती है जिसके लिए आपको फाइनेंस दिया जाता है। आपके प्रोजेक्ट की जो भी सिक्योरिटी होगी वो प्राइमरी में आएगी। कोलेटरल सिक्योरिटी होगी कि आपने कोई एडिशनल में कोई प्रॉपर्टी दी सिक्योरिटी के लिए, कोई हाउस दिया, कोई कमर्शियल और प्रॉपर्टी दे दी जो आपके प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। इट मे बी इन द नेम ऑफ द कंपनी और इन द नेम ऑफ द promoters. Nowadays थर्ड पार्टी सिक्योरिटी आज की डेट में बैंकर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो प्रॉपर्टी किसी न किसी डायरेक्टर की, शेयर होल्डर की या कंपनी के नाम में होनी चाहिए, या आपके क्लोज रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में भी बैंकर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिक्योरिटी के बारे में आप बताएंगे कि वो लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, एड्रेस क्या है प्रॉपर्टी का, उसका यूज क्या है करंट में, ओनरशिप की क्या डिटेल्स है, कोई एनकम्बरेंस है तो उसके बारे में बताएंगे, बिल्टअप है या वेकेंट है उसके बारे में आप बताएंगे, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, कोई एम्पेनल वैल्यूअर की वैल्यू है तो वैल्यू एज पर वैल्यूअर क्या है, अकॉर्डिंग टू यू क्या है, एंड उसका लीगल टाइटल के बारे में अगर कोई रिपोर्ट है तो वो बताएंगे कि लीगली वेदर ये सरफेसी एक्ट के अंदर फॉल करती है या नहीं करती, मॉर्गेजेबल है या नहीं है। उस सब के बारे में हम सिक्योरिटी के बारे में जितनी हो सके उतनी डिटेल्स प्रोवाइड करें।
देन रिक्वेस्टेड आरओआई क्या है, हम किस आरओआई पे अपनी प्रोजेक्शंस को बना रहे हैं, किस आरओआई पे हम अपने लोन को अवेल करना चाहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। रीपेमेंट डिटेल्स के बारे में बताएंगे। आप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान चाहते हैं कि हर महीने आपकी जो इंस्टॉलमेंट है टर्म लोन के केस में वो इक्वल रहे, या आप स्टेप अप प्लान के अंदर जाना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में आपकी ईएमआई कम हो और धीरे धीरे चलते हुए आपकी ईएमआई बढ़ती जाए। जैसा कि जनरली देखा गया है कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स में, होटल्स वगैरह में हम लोग ईएमआई बना देते हैं, लेकिन शुरुआत में बिजनेस को स्टैंड होने में समय लगता है। सो एट दैट टाइम वी शुड कीप लोअर ईएमआई। स्टेप अप प्लान के अंदर हमें जाना चाहिए। बैलूनिंग ईएमआई के अंदर आपने जाना है, या इक्वेटेड प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट में जाना है कि आपका प्रिंसिपल तो इक्वेटेड रहे लेकिन इंटरेस्ट आपका फ्लक्चुएटिंग रहे जैसे जैसे रिड्यूस हो गया। सो और हमें मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड चूज करना चाहिए, उसके बारे में हम बताएं कितना रीपेमेंट पीरियड हमें रिक्वायर्ड है, ताकि जहां भी हैवी क्वांटम ऑफ लोन है या कैपिटल इंटेंसिव है, भले ही प्रॉफिट्स हमें अच्छे जनरेट हो जाए, हम पहले रीपे कर दें, लेकिन ऐसा टाइम ना आए कि हम कहीं एनपीए में फोल्ड करें, कहीं डिफॉल्ट में फोल्ड करें। मॉरिटोरियम पीरियड क्या रिक्वायर्ड है हमें, या इंटरेस्ट हॉलिडे पीरियड के अंदर जाना है तो इंटरेस्ट हॉलिडे पीरियड कितना चाहिए, सारी कंटीजेंसीज को माइंड में रखते हुए मॉरिटोरियम पीरियड या हॉलिडे पीरियड के बारे में बताएं। कुछ अदर कंटेंट्स भी हैं जैसे रेवेन्यू एनालिसिस। यहां हम बताएं कि हमने जो सेल्स की या रेवेन्यू की प्रोजेक्शंस ली हैं उसका क्या बेसिस है, कोई हमारे पास कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं, या क्या हम टारगेटेड सेगमेंट कर रहे हैं, किस बेस पे हमने अपनी सेल्स को प्रोजेक्शन लिया है, और इंडस्ट्री से उसको कंपेयर करके बताएं कि इंडस्ट्री के क्या रेवेन्यूज हैं और हमारे क्या रेवेन्यूज हैं प्रोजेक्टेड। रीपेमेंट शेड्यूल हमने डिस्कस किया ही, उसके बारे में बताएं, क्वार्टरली हमने रीपे करना है, मंथली रीपे करना है, डिसबर्समेंट कब हमने लेनी है, किस किस पॉइंट पे लेनी है, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट कब कब करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां हम क्लियर डिटेल्स दें कि आप फंड्स का कैसे कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे कैसे आपके पास फंड्स का फ्लो होगा। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिजाइन करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट shall be calculated so that anyone can assess the bare minimum requirement of the production and sales of the organization to survive in future। आपकी मिनिमम कितनी सेल्स और प्रोडक्शन पे आपका ब्रेक इवन आता है, इसके बारे में बताएं, कैलकुलेशन दें। Then sensitivity analysis is prepared in respect of the expected revenue या profits, and ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपका स्लाइट इंक्रीज होता है 5%, 10%, या रेवेन्यू में कोई डिक्रीज होता है बाय सर्टेन परसेंटेज। सो आपके प्रॉफिट्स पे, आपकी गोइंग कंसर्न पे क्या इंपैक्ट आएंगे वो सेंसिटिविटी एनालिसिस में दें। एंड वी शैल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द एजम्पशंस। जब भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, अपनी क्या हमने एजम्पशंस ली है, टर्नओवर की क्या ली है, एक्सपेंसेस की क्या ली है, प्रॉफिट रेशो की क्या ली है, उसके बारे में डिटेल से बताएं कि आपने किन एजम्पशंस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिजाइन किया है।
CMA data, most of you have heard, whether आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फाइनेंसिंग में डील करते हैं या नहीं करते, but most oftenly you occur the term CMA data. CMA is credit monitoring arrangement. Some people say critical management analysis. जो बैंक का क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है वो CMA डाटा में टोटल फिगर्स को डाल के उसी से मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का डिटेल एनालिसिस होता है, फंड्स का क्या यूज है उसको इंश्योर करने के लिए CMA डाटा को देखा जाता है। एंड एज पर RBI गाइडलाइंस, CMA data is required for project loans, term loans and working capital loans above 10 lakhs. And it should be provided every year. Bankers demand every year CMA data for renewing or enhancing of your working capital limits. CMA data generally contain the information for immediate past 3 years and projected years. Projected years may be 2 years if it is a proposal of single working capital, and it may be for the years of 7 years or 10 years if it involves term loan. So we give the data up to the total tenure of the term loan. And generally it is divided into 6 statements. Operating statement or profit and loss statement. From this statement, bankers will evaluate performance of the company. It also helpful to know revenue cycle for paying the expenses. इसमें आपका पास 3 इयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रॉपर्ली डिपिक्ट करते हैं और आगे उसके बेस पे फ्यूचर प्रोजेक्शंस आप डालते हैं। बैलेंस शीट स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी साउंड है या नहीं है, कंपनी के पास डेट कितना है और ओन्ड एसेट्स कितने हैं। Then comes to comparative statement of current assets and liabilities. This statement gives competitive analysis of the current assets and current liabilities movement of the borrower. And क्या आपका एक्चुअल वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो यहाँ से कैलकुलेट होता है, एंड बोरोवर की क्या कैपेसिटी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, इस स्टेटमेंट से bankers will come to know. Then is cash flow statement or fund flow statement to evaluate the liquidity of the company. Ratio analysis से बैंक असेस करते हैं कि आपको कितने बैंक फाइनेंस की नीड है और कितना बैंक फाइनेंस आपको दिया जा सकता है। इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, नंबर ऑफ रेशियोज आर देयर। सो रेशियो एनालिसिस ऑल ऑफ यू नो, उसके बारे में पूरा यहाँ पे एक चार्टिंग आ जाती है ऑल पास्ट 3 इयर्स की और फ्यूचर इयर्स की। देन इज MPBF, मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस, ये एक वर्किंग आती है MPBF सीट के अंदर, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होती है और वो ऑटोमेटिकली आपका कितना आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है उसके बारे में वो कैलकुलेशन निकल जाती है। सो जनरली जो MPBF का फॉर्मूला है वो यही है कि आपकी जो सेल्स है, प्रपोज सेल्स हैं, उसका 20% जनरली मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस बैंकर्स अलाउ करते हैं, और आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसका मैक्सिमम 75%। सो बैंकर्स विल नॉट गो बियॉन्ड 20% ऑफ द सेल्स एंड 75% ऑफ द
working capital requirement, whichever is lower. So friends, हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. इसमें कोई भी क्वेरी है तो उसको हम टेकअप कर सकते हैं. राजेश जी, कॉलेज जी, कोई क्वेरी किसी की भी है तो हम यहाँ टेकअप कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. सर एक anonymous attendee की query है. Some banks require product report to be signed by chartered accountants. So should we sign it because at some places it is common practice to sign product reports? नहीं सर, इस पे तो आपको हमारे इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस के इंस्टीट्यूट ऊपर. का गाइडेंस नोट है इंस्टीट्यूट का, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना हम साइन कर सकते हैं क्योंकि इट्स टोटली अपॉन प्रोजेक्शंस, और कोई भी जो अच्छे बैंकर हैं वो इसको डिमांड नहीं करते हैं. ये कई बार मेरे पास भी आती हैं चीजें, लेकिन जब उनको समझाते हैं, बताते हैं तो दे अंडरस्टैंड. प्रोजेक्ट रिपोर्ट कभी भी हमें साइन नहीं करनी चाहिए, ना हम कर सकते. कोड ऑफ कंडक्ट इसके अगेंस्ट है. बिल्कुल सर. ये Thank तो you for sharing. I think that's the only question we have as of now. ओके ओके. सिर्फ इसमें हम ये कर सकते हैं, कई बार अगर बिल्कुल ही कोई बात ऐसी आ जाए कि देनी ही पड़ेगी, सो हम क्लियरली एक स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं कि ये जो भी हमने प्रोजेक्शंस ली है ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड बाय द प्रमोटर, और इसकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, इसका कोई हमने ऑडिट नहीं किया है, और कोई भी एक्सपर्ट व्यू में हम ये साइन नहीं कर रहे हैं. सो विद ए प्रॉपर डिस्क्लेमर, अगर कहीं ऐसी बात आ भी जाती है, क्योंकि कुछ लैंड अथॉरिटीज हैं, जैसे नोएडा अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी में आप कोई भी लैंड अलॉटमेंट कराने के लिए जाते हैं, वहां वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिमांड करते हैं, और सीए के साइन के बगैर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट ही नहीं होती. सो कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जहां मजबूरन आपको साइन देने ही पड़ते हैं टू रिटेन द क्लाइंट. सो ऐसे में प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ दें, डिस्क्लेमर के साथ दें, और हो सके तो अवॉइड ही करें. सो सर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें. हाँ जी सर. सर अभी सर टाइम कितना है हमारे पास अवेलेबल? I think we have 45 minutes. सर प्लीज गो अहेड. उसमें क्या देख लीजिए. Okay सर. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पीछे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी समझा, और अब हम की पॉइंट्स पे आते हैं, तो कोई भी लोन एक्सटेंड करने से पहले बैंकर सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, और तब डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे या इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. सो बैंकर्स बैलेंस शीट को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखने के लिए बिजनेस की, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है फर्म की, उसकी गियरिंग पोजीशन क्या है, और आउटसाइड बोरोइंग्स क्या ली हुई है बिजनेस में, वर्किंग कैपिटल पोजीशन क्या है बिजनेस की, कितनी आपने कैपिटल उसमें इन्वेस्ट की हुई है, टेंजिबल नेटवर्थ क्या है फर्म की, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, एंड इसी तरीके के और अदर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जिसको बैंकर्स एनालाइज करते हैं. और बैलेंस शीट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रेडिट अप्रेजल में.
जिससे कि प्रिलिमिनरी आइडिया मिलता है फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बिजनेस के। सो बैलेंस शीट में बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे थ्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। अभी इस पे मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, की पॉइंट्स पे इलेबोरेशन करेंगे क्योंकि ऑल ऑफ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो सभी को पता है। इनकम स्टेटमेंट आती है फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं सेल्स प्रोसीड्स को और एक्सपेंडिचर को टू शो द सोर्स ऑफ द कंपनीज नेट प्रॉफिट। And the income statement allows the bank to answer questions like how expensive is the product or service in comparison to the sale price, or how much is the fixed cost such as rent which eats the profits. कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट के साथ, ये भी बहुत जरूरी स्टेटमेंट है। और इसमें हमारे क्या कैश के इनफ्लोज हैं, कहाँ कहाँ हमारे कैश के आउटफ्लोज हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। सपोज आपने कोई लोन लिया ईयर्स एगो, लेकिन उसका कैश आउटफ्लो इस ईयर में है या फ्यूचर ईयर्स में है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है, इनकम स्टेटमेंट से उसके बारे में पता नहीं चलता। सो बैंकर्स इसको बहुत केयरफुली एनालाइज करते हैं। देन इज बैलेंस शीट which break down what the business owns and what it owes. क्या हमारे पास है और क्या हमारी देनदारियां हैं। सारे असेट्स हमें यहाँ से मिलते हैं, लाइबिलिटीज के बारे में पता चलता है, सप्लायर्स की क्या हमारी पेमेंट की कैपेसिटी है उसके बारे में पता चलता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेजर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो फाइनेंस में हिंड्रेंसेस को क्रिएट करती हैं। सो वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके ऊपर जनरली हम लोगों का ध्यान नहीं जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए, और बोरोवर्स को अच्छी खासी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे कि आती है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट और एक्सपेंसेस विच आर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन नेचर। एक्सेप्शनल आइटम्स जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, दीज आर वन ऑफ इवेंट्स which caused great expense or big brought to revenue. For example, आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल की जो कंपनी को अब रिक्वायर्ड नहीं है, और उससे कंपनी को एक हैवी प्रॉफिट हो गया, सपोज 1 करोड़ का या 5 करोड़ का अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बिजनेस। एक सिंगल ट्रांजैक्शन से कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बट ये जो प्रॉफिट है ये आपको हर क्वार्टर में या हर ईयर में नहीं आना, बार बार ये रिकर नहीं होगा। इट इज एन एक्सेप्शनल आइटम। इसको हम क्लियरली इंडिकेट करें एक्सेप्शनल आइटम को, अदरवाइज ये मिसलीडिंग पिक्चर देगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और ट्रेंड एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक्सेप्शनल आइटम इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और एक्सेप्शनल आइटम के बीच में एक की डिफरेंस है कि वो आपकी कंपनी की रेगुलर ऑपरेशंस से बिलोंग करता है या नहीं करता। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग जो हमने एग्जांपल में लिया था, वो आपके कंपनी ऑपरेशंस का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये बार बार रिकर नहीं होगा। ये वन ऑफ इवेंट है। एक बार आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड कर दी, उससे कोई प्रॉफिट आ गया, सो उसको हम अलग से शो करें और बाकी प्रॉफिट्स को हम अलग से शो करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज कोई फ्लड आ गई जिससे कंपनी का कोई इक्विपमेंट
फैक्ट्री प्लांट डैमेज हो गया या कोई लेबर की स्ट्राइक आ गई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। इसके बारे में भी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लियरली डिपिक्ट करें। वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमें यही सजेस्ट करता है कि हम इनको क्लियरली अलग से डिपिक्ट करें, बट समटाइम्स हम लोग इसको क्लियरली डिपिक्शन नहीं देते हैं, जिससे कि ट्रेंड एनालिसिस में प्रॉब्लम आती है। एक साल में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, दूसरे साल में प्रॉफिट कम आ रहा है, और बैंकर्स इतने इक्विप नहीं होते कि वो सेल्फ इन चीजों को कवर अप कर लें, और हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां झूलती रहती है। सो इनको हम स्पेशली अलग से दिखाएं, और रिकरिंग प्रॉफिट्स को हम अलग से दिखाएं जो रेगुलर बेसिस पे हमें आते हैं, और कंपैरेटिव व्यू हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपरली बन पाए। नेक्स्ट हर्डल आती है डेफर्ड रेवेन्यू और डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स। डेफर्ड रेवेन्यू और डेफर्ड एक्सपेंडिचर जैसा कि आप जानते हैं वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने इनकर्ड तो अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कर लिए, लेकिन इन एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट आपको मल्टीपल ईयर्स में आना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले हम, आपने कोई मैसिव एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर किया, सो उस एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है आपको आने वाले 2 या 3 साल के अंदर आना है, या कोई आपने एग्जीबिशंस के अंदर कोई हैवी एक्सपेंसेस किया है कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग के लिए, तो उसका जो बेनिफिट है आपको वो आने वाले 2 या 3 साल के अंदर आपको मिलना है। सो हम उसको डेफर्ड एक्सपेंडिचर में डालें और 3 साल के अंदर उसको डिवाइड करें, या 2 साल के अंदर डिवाइड करें एज पर द करेक्ट एस्टिमेट, और सिर्फ उतना ही एक्सपेंडिचर हम उस ईयर में क्लेम करें ताकि एक कंपैरेटिव व्यू बन पाए। नेक्स्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू वो पेमेंट्स हैं जो आपको एडवांस में मिल गई, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है या जो सर्विसेज है वो आपने आने वाले सालों में देनी है। सो उनको भी हम क्लियरली एडवांस बैलेंस शीट में शो करें, और सिर्फ उतना ही पोर्शन हम रेवेन्यू में लेके जाएं जो इस साल से रिलेट करता है। अगर हम ये क्लियरली क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो मिसलीड होके प्रॉपर पिक्चर हमारे जो रिकरिंग प्रॉफिट है उसकी बैंकर्स को नहीं मिल पाएगी, और ट्रेंड एनालिसिस नहीं बन पाएगा। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो। Interest Service Coverage Ratio ISCR is a significant and most crucial liquidity ratio. It indicates the level of the company's ability to afford the interest that is to be paid by the company. कोई भी डेट आप रेज करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट की आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो बताती है। इसको कैलकुलेट करते हैं हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स लेते हैं, एबिट जिसको हम बोलते हैं। आपका जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट और टैक्स के एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, तो आपका एबिट आ जाएगा, एबिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। सपोज आपका नेट प्रॉफिट 100 रुपीज का है एंड 20 रुपीज का आपने टैक्स एक्सपेंस है, और 30 रुपीज का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। सो टोटल एबिट कम्स टू 100 प्लस 20 प्लस 30 150। उसको हम 30 से डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस से। सो 5 इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मीनिंग देयर बाय कि हम 5 टाइम्स अपने इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। एंड आइडियल जो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो होती है, इट शुड बी मोर देन 2।
2:1 की अगर आपकी इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो है तो इट मींस इट इज आइडियल। हाउएवर जितनी आपकी हायर इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो होगी उतना ही ये कंसिडर किया जाता है कि कंपनी आपकी सॉल्वेंट है और आप अपने इंटरेस्ट को, कंपनी की जो भी इंटरेस्ट बर्डन है, विदाउट एनी क्रंच आप उसको पे कर सकते हैं। बैंकर्स का जो फेथ है आपकी, अगर हायर इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो है तो बैंकर्स का फेथ भी आपके ऊपर हायर होगा। हाउएवर कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो मैंने 2:1 की आइडियल इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो बताई है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें आपकी सेल्स रिलेटिवली स्टेबल रहती हैं, फ्लक्चुएशंस ज्यादा नहीं है, तो उसमें आपकी अगर इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो लोअर भी है सो भी बैंकर्स उसको फंडिंग कर लेते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, generally lenders focus to estimate enterprise real worth, real net worth you can say, जिससे कि आपकी कंपनी की रीपेमेंट कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। पहले हमने इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो में देखा कि आप इंटरेस्ट को कितने टाइम तक सर्विस कर सकते हैं। डीएससीआर के अंदर हम देखते हैं कि आपकी कैश प्रोड्यूसिंग एबिलिटी कितनी है, आप अपने डेट की जो पेमेंट्स हैं उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं। करंट जो आपकी डेट ऑब्लिगेशंस है, करंट ईयर के अंदर जो भी आपको डेट्स की रीपेमेंट करनी है वो आप कितने सक्षम हैं करने में, वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो से पता चलता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, अगेन एबिट लेते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड डिवाइड बाय जो भी आपकी प्रिंसिपल पेमेंट्स होनी है ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहां हमने प्रिंसिपल पेमेंट को जोड़ दिया। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो में हम डिनोमिनेटर में सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस लेते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो के अंदर जो भी हमने प्रिंसिपल रिपे करना है वो हम ऐड करते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक साड़ी ट्रेडर है और उसने अपने शोरूम को रीमॉडल करना है and he is negotiating with several banks for a loan. So उस साड़ी ट्रेडर के नाम में कुछ रनिंग लोन्स भी चल रहे हैं उसके नाम से। उसकी बुक्स में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सपोज 50 लाख का और इंटरेस्ट एक्सपेंस है 10 लाख का। प्रिंसिपल पेमेंट्स जो उसकी जा रही है वो जा रही है 30 लाख की। सो डीएससीआर हम कैलकुलेट करेंगे, 50 लाख का उसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 40 लाख, 10 लाख की उसकी इंटरेस्ट एक्सपेंस है एंड 30 लाख की उसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट से। सो 40 लाख से हम डिवाइड करेंगे तो डीएससीआर आई हमारी 1.25। दिस मीन्स कि आप 1.25 टाइम्स जो भी आपने डेट लिया हुआ है उसको 1.25 टाइम्स आप रीपे कर सकते हैं। बैंकर्स जनरली कंसीडर कि 1.5 एंड अबव अगर आपकी डीएससीआर है तो इट इज कंसीडर्ड गुड। अगर आप अपने डेट्स को 1.5 टाइम्स रीपे कर सकते हैं सो बैंकर्स विल गो फॉर फंडिंग। एबिटा, एबिट के बारे में हमने डिस्कस किया। एबिटा स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। EBITDA reflects the short-term operational efficiency of the organization.
एबिटा मार्जिन हम कैलकुलेट करते हैं एबिटा डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू, एंड इट इज द ट्रूएस्ट इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द बिजनेस एंड वाइब्रेंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, बिकॉज इसमें हम फाइनेंस कॉस्ट और अमोर्टाइजेशन को एलिमिनेट कर देते हैं और फोकस करते हैं सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर। एबिटा ही ऑलवेज यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए कि इंडस्ट्री में क्या परसेंटेज मार्जिन्स हैं और आपकी कंपनी क्या परसेंटेज मार्जिन अर्न कर रही है, क्योंकि ये आपके जो फाइनेंसिंग के इम्पैक्ट है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के इम्पैक्ट हैं, उनको एलिमिनेट कर देता है, डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देता है। और ट्रेंड एनालिसिस के लिए हम एबिटा के द्वारा क्लियरली ये समझ पाते हैं कि हमारी कंपनी ग्रोथ पाथ पे है या नहीं है, हम प्रॉपर मार्जिन्स को ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमारे ग्रोस मार्जिन्स डाउन जा रहे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, ये हमें एबिटा से ही क्लियरली पता चलता है। अगर एबिटा आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो ही बैंकर उस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग के लिए कंसीडर कर पाते हैं। और जनरली एबिटा का 3 टाइम्स बैंकर्स लोन के लिए कंसीडर करते हैं, however it may go up to 4 to 5 times also depending upon the security credit worthiness of the borrower, but generally bankers कहते हैं कि जो आपका एबिटा है उसका 3 टाइम्स तक हम लोग डेट कर सकते हैं, कंफर्टेबल है। सो कभी भी बैलेंस शीट बनाते समय हमें एबिटा का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ टैक्स देखते हैं कि इनकम टैक्स पिछले साल इतना दिया था, इस साल इतना देना है। नेट प्रॉफिट को हम लोग देखते हैं कि पिछले साल नेट प्रॉफिट 10 लाख था, इस बार हमने 10,50,000 कर दिया, बट इट मे बी कि आपका एबिटा डाउन जा रहा हो, इस साल आपके डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस कम हो गए हों या ज्यादा हो गए हों, या फाइनेंस कॉस्ट कम या ज्यादा हुई है, तो उससे आपके एबिटा पे इम्पैक्ट आ जाता है। डेट टू इक्विटी, बेसिकली डेट इक्विटी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हमारी टोटल लायबिलिटीज कितनी है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का जो टोटल है माइनस आपकी कैपिटल, सो टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय आपकी नेटवर्थ, नेटवर्थ में आपके कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो कितने टाइम्स आपने डेट लिया हुआ है, इस डेट के अंदर आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी सभी कुछ आ जाता है। सो टोटल ऑफ द बैलेंस शीट माइनस कैपिटल डिवाइड बाय योर कैपिटल। सो ये रेशियो बैंकर्स इसको बहुत ही कंसीडर करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में। जनरली होता क्या है इसके अंदर, डेट इक्विटी रेशियो के अंदर, और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर हमारा सब्सटेंशियल अमाउंट पड़ा होता है, और फैमिली के सारे लोन्स, प्रमोटर्स के भी लोन, रिलेटिव्स के लोन हम लोग अनसिक्योर्ड लोन के अंदर पार्क कर देते हैं। कैपिटल पता चला कि 1 लाख की कंपनी की है, 10 लाख की है, और अनसिक्योर्ड लोन के अंदर हमारा अमाउंट 2 करोड़ पड़ा है या 3 करोड़ पड़ा है। जब हम लोग डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं तो डेट इक्विटी रेशियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस को काउंट करते हैं। समटाइम्स कुछ बैंकर अनसिक्योर्ड लोन को, रिलेटिव्स के लोन को क्वाजी कैपिटल के अंदर कंसीडर कर लेते हैं और डेट इक्विटी रेशियो में उसको कैपिटल मान लेते हैं। कुछ बैंकर्स क्वाजी कैपिटल को 40-50% ही प्रमोटर कैपिटल में कंसीडर करते हैं, और कुछ बैंकर्स क्वाजी कैपिटल को कंसीडर ही नहीं करते। सो भले ही वो पैसा हमारा ही लगा हुआ है, लेकिन
उसकी वजह से हमारी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो इम्पेयर हो जाती है। सो वी शुड ट्राई कि जितने भी इस टाइप के लोन्स हैं वो कभी भी रीपे तो होने ही नहीं होते जनरली। वो पैसा आप ही का है, घुमा फिरा के इधर उधर से आप ही के बिजनेस में लगा हुआ है। सो वी शुड ट्राई कि हम उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दें ताकि जो हमारी डेट इक्विटी रेशियो है वो इंप्रूव हो जाए। जनरली 1 या 1.5 की डेट इक्विटी रेशियो को गुड माना जाता है, बट इन केस अगर आपके अनसिक्योर्ड लोन्स में ज्यादा अमाउंट पड़ा है तो ये डेट इक्विटी रेशियो आपकी बहुत ही हायर साइड चली जाएगी और ज्यादा हायर साइड जाने से बैंकर्स उसमें पीछे हट जाएंगे। हाँ, कुछ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो गई, लाइक इंजीनियरिंग हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, वहां डेट इक्विटी रेशियो की परसेंटेज दे मे कंसीडर हायर देन दिस डिपेंडिंग अपॉन द capital intensiveness of the industry. Short term or long term borrowings. Friends, short term debt वो फाइनेंसिंग है जो विद इन 12 मंथ्स आपकी रिपे हो जानी है, और लॉन्ग टर्म डेट वो डेट हुआ जो 12 मंथ्स के अंदर रिपे नहीं होना, 12 मंथ्स के बाद रिपे होगा। तो अगर आपने फोरकास्ट बनाने हैं और लोन आपका 12 मंथ से ज्यादा का लोन है तो उसको शॉर्ट टर्म के अंदर ना दिखाएं, उसको आप डिवाइड करें, मल्टीपल ईयर्स के अंदर रिपे होना है। सो उसको प्रॉपरली करंट लाइबिलिटीज के अंदर और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर उसको प्रॉपरली ब्रेक करें। अदरवाइज जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इम्पेयर हो जाएंगी और आपकी जो ड्राइंग पावर है ओडी लिमिट के अंदर या वर्किंग कैपिटल लिमिट के अंदर वो आपकी ड्राइंग पावर इम्पेयर हो जाएगी। अगर आपने कोई लोन सपोज 3 साल के लिए लिया है तो उसकी जो रीपेमेंट्स विद इन ईयर होनी है नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर, उसको आप शॉर्ट टर्म के अंदर दिखाएं, जो बैलेंस है उसको लॉन्ग टर्म के अंदर दिखाएं। हालांकि ये शेड्यूल 6 में भी आ गया है, बट कुछ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें शेड्यूल 6 एप्लीकेबल नहीं होता, वहां हम लोग इसको सिंपल एक ही जगह शो कर देते हैं। और कई बार तो मैंने ये देखा है कि लोग इसको टोटल का टोटल करंट लायबिलिटी के अंदर डाल देते हैं। सो उससे हमारी जो भी बैंकेबिलिटी है वो इम्पेयर हो जाती है। हम इसको पार्ट में डिवाइड करके दिखाएं। Friends, long-term debt is taken on for acquisition of fixed assets, such as equipments आपने कोई परचेज करने हैं, कार परचेज करनी है, कोई लैंड एक्वायर करनी है, कोई दूसरी कंपनी को आपने एक्वायर करना है, इस टाइप के जो भी लोन है वो लॉन्ग टर्म लोन्स कहलाते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन्स आपके वो हो जाते हैं जो अकाउंट पेबल के लिए आप लेते हैं या एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं या अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए लेते हैं, लाइक वर्किंग कैपिटल लिमिट या शॉर्ट टर्म लिमिट। अब जनरली इसमें होता क्या है कि जिन कंपनीज की क्रेडिट वर्दीनेस है या रिलेटिवली साइज थोड़ा सा अच्छा है, सो इन कंपनीज को विदाउट कोलेटरल भी लोन मिल जाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स आजकल बिजनेस लोन हम जिन्हें कहते हैं वो अच्छी कैपेसिटी में मिल जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसी ट्रबल में आ जाती हैं। आपने कोई असेट उससे परचेज किया, असेट का साइकिल तो है 7 इयर्स का या 10 इयर्स का, लोन आपने ले लिया 3 इयर्स का या 4 इयर्स का। सो आपने वो एंटायर लोन 3 या 4 इयर्स में रीपे कर दिया। रीपे करने की वजह से जो आपकी वर्किंग कैपिटल नीड्स हैं वो बढ़ गई, क्योंकि फंड्स तो आपने बिजनेस से ही निकाल के दे दिया और सपोज आपके प्रॉफिट्स उतने सफिशिएंट नहीं थे जितनी आपने लोन की रिपेमेंट्स ली। सो हमें क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए कि जो भी वो टर्म लोन ले वो
असेट की जो लाइफ साइकिल है उससे कंसिडर करते हुए है। और समटाइम्स तो मैंने ये देखा है कि जो आपने वर्किंग कैपिटल लिमिट ली, क्योंकि उस पे एंड यूज का इतनी क्लोज मॉनिटरिंग बैंकर की नहीं होती, सो प्रमोटर्स उस वर्किंग कैपिटल लिमिट से ही फंड को यूज करके पैसे दे देते हैं। उनको बड़ा इजी लगता है कि मैं मशीनरी के लिए लोन लेने जाऊंगा, मुझे कोटेशन लेनी होगी, टर्म लोन बनेगा, रिपेमेंट्स होंगी, सो वो वर्किंग कैपिटल लिमिट को यूटिलाइज करके अपनी मशीनरीज को, अपनी छोटी मोटी टर्म लोन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि अच्छी खासी प्रॉब्लम बिजनेस में खड़ी हो जाती है, उसकी ड्राइंग पावर भी नहीं निकल पाती और आगे उसकी एनहांसमेंट्स भी वर्किंग कैपिटल लिमिट की नहीं बन पाती। और एज एन ऑडिटर हमें भी ये कमेंट करना चाहिए, कारो वगैरह में तो ये कमेंट्स आती ही आती हैं। अब कारो के अलावा स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं आती, धीरे धीरे गवर्नमेंट इज विजिलेंट, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएंगी। बट फॉर क्वालिटी पर्पज वी शुड कंसल्ट आवर क्लाइंट कि वो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज ना लाए। ईएमडी और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जनरली ये कॉन्ट्रैक्टर्स की केस में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ज्यादातर आते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली करंट असेट्स में हम लोग लेके चलते हैं अगर ये आपको 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न मिलनी है। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आपको 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आपने दी है तो आप इसको लॉन्ग टर्म असेट्स के अंदर लेके जाएं, करंट असेट्स के अंदर ना लेके जाएं। या आपने दी है या सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, सो सेम वाइज करंट लायबिलिटी के अंदर ना लेके जाएं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर लेके जाएं। कस्टमर डिपॉजिट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है उसको क्लियरली डालें आप। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आप क्लियरली शो करें कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आपके विद इन 1 ईयर आपको रिटर्न मिलने हैं या 2-3 ईयर्स के अंदर मिलने हैं, क्योंकि ये बैंकर्स के माइंड के ऊपर ग्रेट इंपैक्ट लेके आती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। बैंकर विल कंसीडर कि जी आपके तो डेटर्स ही 150 डेज के हैं, 160 डेज के हैं, सो आपके जो डेट्स की रिलायबिलिटी है उसके ऊपर एक डाउट क्रिएट होता है। और जनरली मैंने ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की बैलेंस शीट में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट को हम लोग टोटल का टोटल करंट असेट्स, या कुछ लोग तो उसको बाइफरकेट भी नहीं करते, सन्ड्री डेटर्स के अंदर ही डाल देते हैं। टोटल सन्ड्री डेटर्स में वो अमाउंट ईयर ऑन ईयर चलता रहता है और बैंकर्स भी इतना पेन नहीं लेते उसको समझने के लिए। जैसे ही आपका प्रपोजल जाता है दे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कि ये प्रपोजल बैंकेबल है ही नहीं, आपके तो डेटर्स बहुत ही लंबे पीरियड के हैं। सो इसको हम बैलेंस शीट में ड्राफ्ट करते समय ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट्स, अगेन इन्वेस्टमेंट्स में भी हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। जिन इन्वेस्टमेंट्स को कंपनी विद इन ईयर बेचना चाहती है उनको हम करंट इन्वेस्टमेंट्स में लेके जाएं। जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको कंपनी 1 साल से ज्यादा होल्ड करना चाहती है उनको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्लासिफाई करें, जिससे कि क्लियर डिपिक्शन हमारी वर्किंग कैपिटल की और टर्म लोन्स की निकल पाए। सपोज जैसे कोई शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट की है दूसरी कंपनी के और उन इन्वेस्टमेंट्स को आप सेल करना चाहते हैं विद इन ईयर, सो वो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स होगी, या आपने अपनी सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाएं। करंट रेशो, करंट रेशो लिक्विडिटी रेशो है जिससे कि कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को जो आपकी ईयर में ड्यू होनी है
वो आप कितना पे कर सकते हैं, करंट रेशियो इसके बारे में बताती है। सो एक करंट रेशियो जो इंडस्ट्री की एवरेज है, अगर उसी लाइन में आपकी करंट रेशियो है, दैट इज प्रेफरेबल। या स्लाइटली हायर है इंडस्ट्री नॉर्म से तो भी एक्सेप्टेबल रेशियो मानी जाती है। अगर करंट रेशियो आपकी इंडस्ट्री एवरेज से लो है, जो नॉर्मल बाकी इंडस्ट्रीज उस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, सो ये एक हायर रिस्क की तरफ इंडिकेट करती है, डिफॉल्ट की तरफ इंडिकेट करती है। सिमिलरली अगर आपकी करंट रेशियो इंडस्ट्री नॉर्म से बहुत ही ज्यादा हाई है, सो इसका मीनिंग ये निकलता है कि मैनेजमेंट अपने असेट्स को, अपनी वर्किंग कैपिटल को इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहा। सो लोअर करंट रेशियो या हायर करंट रेशियो दोनों ही गुड नहीं है। इट शुड बी एवरेज और नियर टू एवरेज। जनरली 1.33:1 की रेशियो, करंट रेशियो आइडियल मानी जाती है फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए। It may go down up to 1.25 or it may go down up to 1.5 or 1.6. Notes given by auditors. Certain type of qualified auditor reports create great impact. जो भी क्रेडिट डिसीजन है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑडिटर्स क्वालिफिकेशंस का आता है, जैसे कि स्टॉक रजिस्टर इज नॉट मेंटेन्ड और नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, फिक्स असेट रजिस्टर इज नॉट मेंटेन्ड बाय द कंपनी, statutory payments like TDS, GST, PF, ESI are paid delayed. So इन क्वालिफिकेशंस पे हमें बड़ा केयरफुली वर्क करना चाहिए। पॉसिबली जितनी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से ले सकें वो हम लें, ऑब्टेन करें, उनको क्लियरली एनालाइज करें, कोई भी वेग कमेंट क्वालिफिकेशंस में ना दें, और ट्राई करें कि ये क्वालिफिकेशंस जितनी मिनिमाइज हो सके उतनी मिनिमाइज करें। कई बार हम लोग अपनी स्किन को सेव करने के लिए कुछ जर्नल में भी कमेंट्स इस तरह के डाल देते हैं, सो उस तरह की कमेंट्स को अवॉइड करें, ताकि क्योंकि अगर आप उसमें फेथ नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्टॉक रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, फिक्स एसेट रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्पेयर हो जाती है, और बैंकर्स का फेथ उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन से कम हो जाता है। सो इन माय ओपिनियन फ्रेंड्स, अगर आपने बताई हुई इन बातों से अपनी बैलेंस शीट को डिजाइन किया, इन सब बातों को ध्यान रखा, रेशियो एनालिसिस को प्रॉपर देखा, तो मैं समझता हूं कि जो बैंकेबिलिटी है बिजनेस की वो मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी। सो ऐसा मेरा मानना है। सो जैन साहब, कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो उसको ले लेते हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, म्यूट है। आ रही है सर आपको वॉइस? जी जी, ना हुआ। क्वेश्चन आंसर तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा सर, अच्छा, लेकिन दो लोगों ने रेज हैंड किए हुए हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाउ टू डू इट। कोई ले लीजिए सर, इंस्टेंट वैसे ले लीजिए, किसी के हैंड रेज हैं तो। अंकित जी आप बोलिए, अपना माइक ऑन कीजिए। अंकित सोमानी जी, हेलो। Hello, I am audible. सोमानी जी, Yes, sir, I am audible. हाँ यस यू आर ऑडिबल। अच्छा सर, वन थिंग जो आपने एपीवीएफ का फॉर्मूला बताया था, बेसिकली उसमें वर्किंग कैपिटल के बेस पे ही लेते हैं 75% ऑफ वर्क। Pardon, was allowed.
सर आपने जो एमपीबीएफ का फॉर्मूला बताया था ना, जी। सो सर जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड 20% ऑफ सेल्स वाला, आई थिंक देयर आर टू कमिटीज, एक टंडन कमेटी है और एक शोर कमेटी है जिन्होंने सजेस्ट किया था दैट इज ऑल बेस्ड ऑन 75% ऑफ द वर्किंग कैपिटल और 75% ऑफ द करंट एसेट्स, दैट्स 100% ऑफ करंट इक्विटी. इज देयर एनीथिंग लाइक 20% ऑफ ये is there 20% is also there. this is prescribed by any committee or बैंकर्स जनरली कंपैरेटिव निकालते हैं, वो 20% ऑफ द टर्नओवर भी निकालते हैं. मैं बात कर रहा हूँ सीसी लिमिट की, कैश क्रेडिट लिमिट की बात कर रहा हूँ. अगर आप ओडी लिमिट लेते हैं तो ओडी लिमिट में 75% पे भी वर्क कर लेते हैं, लेकिन अगर हम वर्किंग कैपिटल लिमिट में कैश क्रेडिट लिमिट की बात करते हैं, सो कंपैरिजन लेते हैं दोनों का. वर्किंग कैपिटल कैश क्रेडिट भी तो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा ना अल्टीमेटली, या उसमें नहीं, कुछ डिफरेंस है? एक्चुअली होता क्या है अंकित जी कि दो बाइफरकेशंस दिए हुए हैं. ओवरड्राफ्ट लिमिट आप लेते हैं, सो ओवरड्राफ्ट लिमिट जनरली क्या होता है कि उसमें आपको स्टॉक स्टेटमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और उसमें जो एम्फेसिस होता है वो आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर होता है मेनली. लेकिन जब हम लेते हैं कैश क्रेडिट लिमिट में आपको मंथली या क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी होती है, और मेन एम्फेसिस आपके बिजनेस के ऊपर होता है. प्रॉपर्टी इज सेकेंडरी इन दैट. सो इन दैट सिनेरियो उसकी क्लोज मॉनिटरिंग रहती है, और उसमें दोनों क्राइटेरिया को लगा के ही कैश क्रेडिट लिमिट को अलाउ करते हैं. उसमें ही हमें ये एफएफआर, ड्राइंग पावर, डीपी स्टेटमेंट वगैरह उसमें ही देना पड़ता है. क्या कह रहे हैं सर, पार्डन? सर जो डीपी स्टेटमेंट होता है या एफएफआर जो हाफ ईयरली बैंकर्स मांगते हैं, एफएफआर 1, एफएफआर 2, जी, सीसी के केस में ही होता है. हाँ, सीसी के केस में होता है ड्राइंग पावर. तो सीसी इज एज गुड एज वर्किंग कैपिटल लोन, या फिर उसमें कोई बाइफरकेशन होता है कि दिस इज वर्किंग कैपिटल का पार्ट है सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट. कैश क्रेडिट लिमिट के अंदर कंपोनेंट होता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है, प्लस आपके डेटर्स कितने हैं, 90 डेज या 120 डेज जो भी अलाउ किया है बैंकर ने, माइनस योर सन्ड्री क्रेडिटर्स जो उस इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए आपके क्रेडिटर्स हैं. ये आपका निकाल के आपके ड्राइंग पावर निकलती है. इसमें एक क्वेरी है, जब ये क्रेडिटर्स माइनस करते हैं उसमें वो स्पेसिफिक कोई लाइन, हर एक बैंक का कुछ अलग लाइन रहता है, तो सीएमएम सॉरी जब एमपीबीएफ ये निकालते हैं डीपी, तो उसमें लिखा रहता है कि अनपेड क्रेडिटर्स और समथिंग, ऐसा कुछ लाइन लिखा रहता है अंडर एलसी और समथिंग लाइक दैट. क्रेडिटर्स तो अनपेड ही हुए ना आपके. क्रेडिटर्स का कुछ स्पेसिफिक वर्ड रहता है. आई एम नॉट 5-6 साल पहले कहीं काम पड़ा था उस बारे में. अभी अंडर एलसी का ऐसा कुछ रहता है क्या? हर बैंक का ऐसा रहता है? नहीं, ट्रेड क्रेडिटर्स ही होता है बेसिकली. जो क्रेडिटर्स आपके हैं वो आपके बैलेंस शीट में जो भी शो करेंगे वो अनपेड ही होंगे. राइट, वो तो अनपेड ही होंगे. तो अनपेड क्रेडिटर्स आप उसमें से माइनस कर देंगे. ओके. एक पॉइंट आया हुआ है, डिफरेंशिएट एलिजिबिलिटी फॉर फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट प्रोजेक्शन. देवेंद्र खुराना जी का क्वेश्चन है. सर बेसिकली फंड बेस्ड के लिए तो अभी हमने बताया है कि वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए तो एमपीबीएफ पे जाएंगे, और टर्म लोन के अंदर आपका कितना फंड उसमें लगना है, जैसे आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करनी है, सो जनरली 75% bankers will give and 25% promoter margin you have to bring in. This 25% requirement may go or may up according to the credit worthiness of the promoter. नॉन फंड बेस्ड के बारे में हम बात करें तो नॉन फंड बेस्ड की लिमिट की प्रोजेक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से निकलती है. नॉन फंड बेस्ड लिमिट के अंदर हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इन हैंड है और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमें बिड करने हैं. इस साल में हमारी प्रोजेक्शन क्या है,
उसके अंदर हमारी कितनी बैंक गारंटीज की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, और आने वाले 3 साल में 4 साल में वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट करने हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कि हमें कितनी नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स की रिक्वायरमेंट है। सो वो एक एनालिसिस हमें देना होता है। सर राइटिंग में तो सर क्यूए में तो जो क्वेश्चंस है वो मैंने ले लिए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक अप। सर वो आप म्यूट पे हैं। हेलो अग्रवाल साहब, जी जी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन हैं तो हमको भेज दें, वी विल पास ऑन टू यू फॉर द क्लैरिफिकेशन लेटर ऑन एंड देन विल डू द नीडफुल। बिल्कुल। मैं श्रीवास्तव साहब लाइन पे हैं, ए के श्रीवास्तव साहब। हेलो, ए के श्रीवास्तव साहब लाइन पे हैं सर। आज का जो डेलिब्रेशन है वो हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट से शुरू किया और बैलेंस शीट एनालिसिस पे हमने कंक्लूड किया। तो जो बैलेंस शीट एनालिसिस है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट while preparing the project report, because प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी बहुत सारी चीजें जो बैलेंस शीट में रेशियोज एनालिसिस हैं या जो चीजें आपने बताई हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द स्टडी ऑफ द बैंकर एंड टू परमिट द फाइनेंसिंग। सो वी स्टार्टेड विद the questionnaire to be prepared for the project report, then the information to be gathered and the authenticity of the information, and then proceeding thereof with the promoters, with the financial capital investments, finance required, and the working capital, etc., etc. And the best part of your presentation was the analysis of the balance sheet, which was one of the simplest way of explaining to all our participants. So Rajesh ji, we are thankful to you for your deliberation, for your presentation, and I understand and I'm sure that all our participants must be enriched with your deliberation, with your presentation. Many of the concepts will be cleared, many of the concepts must have been cleared, and our participant must have gained the knowledge how to prepare a project report in a best possible manner, and also the analysis of the balance sheet. We had to keep in mind the guidelines or the directions of the institute while certifying, as you have already mentioned, that we should desist from certifying the project report, but invariably in certain cases where the mandate is required, then we had to give the disclaimer. With these words, I am so thankful to you, Mr. Rajesh Agarwal, for your presentation, and I am thankful to all the participants who are with us from the last 2 hours to gain the knowledge on this aspect. Thank you very much, Rajesh. Thanks, Thank sir. you, Thanks, sir. So nice of you. So nice of you. Thank you. Thank you all. संजय, बंद करो।